Now, viewers, moving on, a big breaking news coming in from an important United Nations report. A major revelation links the Pakistan-based terror group Jaish-e-Mohammed to the 10th November Red Fort attack in the national capital. According to the 37th report of the United Nations, prepared by the Analytical Support and Sanctions Monitoring Team for the UN Security Council's 267 Sanctions Committee, intelligence confirmed the involvement of Jaish-e-Mohammed in the deadly assault near national capital's historic Red Fort. The attack, which occurred on November 10, reportedly killed 15 people. The UN report states that one member state has informed the committee that Jaish-e-Mohammed claimed responsibility for this attack. The report also highlights a recent development within the group. On October 8, Masood Azhar, the leader of Jaish-e-Mohammed, announced the formation of a new women's wing called Jamaat-ul-Momineen. While this wing is not currently listed under the UN sanctions, it has been accused of supporting terrorist activities. Viewers, the report further reveals divergent views among UN member states. While one country insists that Jaish-e-Mohammed is still active, another claims the group is now inactive. This comes despite Pakistan's previous statements asserting that after banning Jaish-e-Mohammed and Lashkar-e-Taiba, these groups were no longer operational. In addition, the report touches upon other cross-border terror incidents, including the April 2025 Pahalgam attack, in which 26 civilians lost their life. That attack was carried out by the Resistance Front, considered a proxy of Lashkar-e-Taiba. The UN also notes that in May 2025, India took action against terror camps in Pakistan, sparking 4 days of military tension between the two countries. The finding of this UN report once again raised serious questions about cross-border terrorism, the role of banned groups, and the challenge in enforcing international sanctions. We will continue to monitor the story closely and bring you updates as more details emerge from the United Nations and Indian security agencies. Well, viewers, I am being joined by my colleague Jitendra Sharma. Jitendra ji, ये बड़ी खबर है यूएन के तरफ से लश्कर-ए-तौयबा के बारे में जो कहा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है। आप इसके क्या जानकारी और आप दे सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए, इस रिपोर्ट के बाद कहीं ना कहीं एक बार फिर जो पाकिस्तान का आतंकी चेहरा है वो पूरे विश्व के सामने आ चुका है। अगर आप इस रिपोर्ट को देखें तो यूएन की इस रिपोर्ट में साफ तौर पर बोला गया है कि जो रेड फोर्ट पर हाल ही में लाल किले के ऊपर जो अटैक हुआ था लाल किले के पास, जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी, उसमें सीधे तौर पर जैश-ए-मोहम्मद का जो लिंक है वो सामने आया है और खुद यूएन के एक सदस्य देश ने इस बात को कबूल किया और इस रिपोर्ट में उसका जिक्र भी किया गया है। इसके अलावा साफ तौर पर यह भी इस रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि दरअसल जो पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद है वो सीधे तौर पर इस लाल किले के पास हुए कार ब्लास्ट से जुड़ा हुआ था। इसके अलावा ये भी कहा गया है इसके अंदर कि मसूद अजहर ने 8 अक्टूबर को महिलाओं का एक अलग विंग तैयार किया था, यानी कि जो महिला जिहादी हैं उनको लेकर एक अलग विंग तैयार किया जिसका नाम रखा था जमात-उल-मोमिनात, और यूएन की लिस्ट में ये विंग शामिल तक नहीं है। तो ये जो तमाम बातें हैं वो सीधे तौर पर इस रिपोर्ट के अंदर कही गई है। पहलगाम हमले का भी जिक्र इसके अंदर किया गया है और ये भी बताया गया कि लश्कर-ए-तैयबा का प्रॉक्सी माना जाता है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने इस पहलगाम हमले को अंजाम दिया था। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान पर हुए जितने भी आतंकी हमले हैं हाल ही में, उन सभी में यूएन रिपोर्ट के अंदर सीधे तौर पर पाकिस्तान को दोषी ठहराया गया है। पाकिस्तान के अंदर मौजूद लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया गया है। तो अब एक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान की जो छवि है या फिर कहे उसके मंसूबे हैं, अब वो पूरे तरीके से साफ हो चुके हैं। जी जितेंद्र जी, जो लगातार सवाल खड़े हो रहे थे क्योंकि पाकिस्तान लगातार जो है ये एलिगेशन क्लेम्स डिनाई कर रहा है, और जबकि यूएन के खुद जो नेशंस है उनके तरफ से ये बड़ा स्टेटमेंट आया है कि दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट में जैश-ए-मोहम्मद का रोल था, उनके तरफ से ये क्लेम किया गया है। तो अगर कार्रवाई की बात करें तो अब तक प्रेजेंट सिचुएशन क्या है?
जी बिल्कुल, देखिए यूएन की जो एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शन मॉनिटरिंग टीम है, उसने इन तमाम बातों का जिक्र अपनी रिपोर्ट के अंदर किया है। ये यूएन की रिपोर्ट में साफ तौर पर, ये 37वीं रिपोर्ट है जिसके अंदर साफ तौर पर ये बोला गया है कि लाल किला ब्लास्ट और इसके अलावा पहलगाम ब्लास्ट, लाल किले के सीधे तौर पर जो अंजाम दिया था वो जैश ए मोहम्मद ने दिया, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आतंकी संगठन है। और जो लश्कर का प्रॉक्सी है, द रेजिस्टेंस फ्रंट, उसने ना सिर्फ इस पहलगाम हमले की जिम्मेदारी ली थी, बल्कि उससे जुड़े कई आतंकियों को हमारी भारतीय सेना ने ऑपरेशन के दौरान मौत के घाट भी उतारा। तो कहीं ना कहीं एक पुख्ता सबूत है अब हिंदुस्तान के पास, ये दिखाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पटल पर कि जितने भी आतंकी हमले हाल फिलहाल में, चाहे पहलगाम हो, लाल किले के पास कारब्लास्ट हो, इन सभी में सीधे तौर पर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के इशारे पर जो आतंकी संगठन है जैश ए मोहम्मद और साथ ही लश्कर ए तैयबा, इनका सीधे तौर पर हाथ देखा गया है, इनका लिंक सामने आया है। जी धन्यवाद जितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ने के लिए। व्यूअर्स, दिस हैज़ डेफिनेटली ओपन न्यू लीड्स after the UN report. It has opened new leads for the Delhi police and the NIA on the Red Fort blast investigation.